वेल नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 21 नवंबर है, 21 नवंबर 2025। ये ಮೆಸೇಜ್ जाता है ಕನ್ವಾ और बाकी के पांची लोगों को ಕನ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೋಮವಾರ, लास्ट सोमवार हियरिंग इतो हाईकोर्टಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ पी आई ಗಳದ್ದು। पॉन्जी पी आई दोनों को कनेक्ट किया है, इसके लिए दोनों की हियरिंग होती है। तो हमने सोचा था कि पिछली बार हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, इस बार ये ಈ ಸರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬಟ್ ಈ ಸರಿನೂ ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 5th February 2026 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಮೊ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮೆಮೊ ಫಾರ್ ಕನ್ವಾ, ಒಂದು ಮೆಮೊ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಂಜಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್। ಕನ್ವಾದವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ವಿ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಜೂನ್ ಹಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟು ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಾ। ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ। ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಕಂಟೆಂಪ್ಟು ಖಾರಿಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು। ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, 282 ಲಿಸ್ಟು ಜೂನಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 25ಅಲ್ಲಿ। ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಬೇಕಾದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪ್ರಿಲಿ ಆದೇಶ ಆಯಿತು, ಇವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವ್ ಎಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಮೋಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಎಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಆದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು, 29/7/21 ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕನ್ವಾರ್ಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ವರ್ಬಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ। ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕನ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾನ್ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಬಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆನರೇಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್। ಬಟ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಕನ್ವಾದವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ದಿಸ್ ಕಾಪಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ನಾವು ಇದು ಈ ಡೇಟ್ಗೆ 14 ನವಂಬರ್ಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಏನೋ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವಾದವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆನೂ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡೋಣ। बाकी लोगों के लिए क्या है, तो 2021 में वेरिफिकेशन के लिए बोले थे, वेरिफिकेशन इन लोगों ने किया नहीं, फिर हम लोगों ने कंटेम्प्ट डाला था, ಕನ್ವಾದಗೂ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ನಡೆಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿपोर्टಲ್ಲಿ 2-3 ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ सर कंटेम्प्टಲ್ಲಿ। एवरी कंटेम्प्ट में क्या होता है, हर महीने हियरिंग होता है, हर 2-3 हफ्ते के बाद हियरिंग होता है, तो और बढ़ता जाता है, प्रेशर रहता है। तो ये लोग भी जज साहब कोर्ट भी नहीं चाहते कि बार बार एक ही चीज़ का हियरिंग हो, गिव देम सम टाइम करके उसको खारिज करके ऑर्डर दिया था कि जो भी करना है बाकी है इनका कंप्लाई करो। हमने बोला था सर ये लोग कंटेम्प्ट नहीं तो काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं तुम्हारा PL तो चालू है, उसमें आप जो भी मांगना है मांगो। तो उसमें मेमो हम लोग डाले हैं। मेमो में बेसिकली ये डाले हैं कि सर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। एम्बुलेंट वालों ने तो फरवरी 2019 को डाला था, करीब फरवरी में 7 साल के करीब हो जाएगा, 7 साल तक उन लोगों ने क्लेम लेने के बाद कुछ नहीं दिया है। और
कंटेम्प्ट का मॉनिटरी के हिसाब से भी कुछ एक्शन नहीं है, खाली इंजाज का सुना हूँ। रिसेंटली आला को थोड़ा पैसा मिला था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और किसका क्लेम एक्सेप्ट हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ, किसी को पता नहीं। मुजारिबा और आला लोगों को, काफ़ी लोगों को रिजेक्ट मिल गया था, उसके बारे में बात करूँगा। इसके बाद रिजेक्ट लेटर आया था, करीबन 1600 लोगों को रिजेक्ट किया आला में, और 70-80 लोगों को रिजेक्ट किया मुजारिबा में। उतने ही डाले थे, बाकी लोग डाले ही नहीं थे। और इंजाज में भी 400-500 लोगों को रिजेक्ट किया, और करीबन 3800 लोग क्लेम भरे थे, उसमें से खाली 1100 लोग वेरीफाइंग के लिए गए थे। तो उधर भी हमारी भी गलती रहती है, हमारे लोग भी चाहते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया वैसे ही आ जाए। जब भी बोलते हैं थोड़ा इधर का, अरे सर मैं थक गया हूँ, इधर गया हूँ उधर गया हूँ, क्या करूँ। दोनों तरफ से हमको दबाना, इधर भी धक्का मारना पड़ता है, उधर भी धक्का मारना पड़ता है। और ये भी मैंने कोर्ट में बोला कि इन लोगों को एक्सेप्ट रिजेक्ट का कम से कम बताओ। तो कुछ लोगों को बताया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बताया। एक्सेप्ट का तो किसी को नहीं बताया, रिजेक्ट का अच्छा तरह से आया है, तुम रिजेक्ट करें। हाँ, जो मैसूर की प्रॉपर्टी थी अजमेरा की, उसके बारे में मैंने फिर से जिक्र किया है कि सर हमने डाला था, और वो प्रॉपर्टी में डालने के बाद इंक्रोचमेंट होने के बाद इन लोग बोल रहे हैं कि हम नोटिस भेजे हैं, लेकिन नोटिस भेजने के बाद 4-5 बिल्डिंगें और खड़ी हो गई है। तो ये क्या है, कैसा नोटिस है। हाँ, नाफिया वालों के लिए हमने लिखा था कि कोई एक तहसीलदार है, 2 साल से महाजर नहीं कर रहा उनके एक प्रॉपर्टी का। वो क्यों महाजर नहीं कर रहा समझ में नहीं आता। मतलब अभी फ्रॉड कौन है, स्कैमस्टर कौन है, पता ही नहीं चलता है। सरकारी दफ्तर है, थोड़ा घमंड में रहते हैं, थोड़ा अहंकार में रहते हैं। तो जैसे कल या परसों 2-3 दिन पहले हमारे कुछ लोग गए थे, इन लोगों का रिजेक्ट लेटर आया था, इंजाज वालों का 4-7-8 लोगों का रिजेक्ट लेटर आया था। तो हमने कोर्ट में अप्रोच किए थे कि सर इन लोगों के पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन लोगों ने कैश का जो ओरिजिनल रसीट है वो दे सकते हैं, और इन कुछ लोगों ने बैंक का स्टेटमेंट दिया है, कुछ लोगों को बैंक में आया है इंस्टॉलमेंट्स, उसके स्टेटमेंट दिए हैं। तो इनको कैसे बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारे पास। तो जज साहब ने, स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनका फिर से रिकंसीडर करो, उसको बोलते हैं रिकंसीडर करो, क्लेम रिकंसीडर करो। तो रिकंसीडर के लिए ऑर्डर दिया था। तो ये लोग मतलब रिकंसीडर तो कर ले लिए हैं, लेकिन जो नया क्लेम भरने गए थे उनको भी बोले तुम खाली। एक्चुअली क्या होता है कि जिनका नया क्लेम है उनको क्लेम भरना पड़ता है, क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, और जिनका रिकंसीडर है या रिजेक्ट हो गया था, उन्होंने तो ऑलरेडी क्लेम भरा था ना, तो उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसके लिए रिकंसीडर के लिए फिर से क्लेम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक लेटर देना पड़ता है कि मैं ये अटैच कर रहा हूँ आपके उसके लिए, देखने के लिए कि देखो मैंने ये प्रूफ दिया है। तो एक लेटर के साथ गए थे। तो जो लोग नए गए थे उनको भी समझ करके, होता है ना अहंकार, देखते नहीं, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। तो वहाँ की जो एक लेडी है वो उनको भी एक लेटर पे सील मारने को बोल दी, फिर एफिडेविट गलत करवा दी, बहुत कुछ फिर हमारे क्लैरिफिकेशन हुआ। लेकिन तो आप लोग याद रखना भाई कि जो लोग नया क्लेम सबमिट करने जा रहे हैं वो कोर्ट ऑर्डर के साथ में जाते हैं। तो हमने कहा था कि सर बट हम कोर्ट ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे तो हम कंटेम्प्ट डालेंगे, वैसे भी 2 डाल चुके हैं। जब तक आप कोर्ट का आदेश, हमको तो एक ही है, अब हमको नहीं लगता कि कोई भी हमको पैसा दिलाएगा, सिर्फ कोर्ट से पैसा आने का उम्मीद है। तो जो भी करना है हम कोर्ट से करेंगे, कोर्ट में कम से कम कोर्ट का आदेश मानते हैं। तो बाद में समझाया गया तो बोले ठीक है। बाकी लोगों का जिनका फ्रेश था उनको क्लेम भरने को बोला है, और जो ऑलरेडी क्लेम भरे हुए हैं रिजेक्ट होता उनका खाली एक लेटर देके उनको खाली प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट देना है, आइदर कैश रिसिप्ट एग्रीमेंट जिसको बॉन्ड बोलते हैं, और पेमेंट या तो आपने दिया है या तो आपको आया है, दोनों को माना जाएगा। क्योंकि देयर इज अ ट्रैक और देयर इज अ ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आईडी प्रूफ, यही सब होता है। तो कोर्ट ने आदेश क्लियरली दिया है कि उन्होंने ये दिया है तो आप क्यों उनको रिजेक्ट कर रहे हो। तो फिर से रिकंसिडर करो करके दिया है। अब रिकंसिडर नहीं करेंगे तो फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन लगता है कि इतना सब प्रूफ के बाद रिकंसिडर करने का चांस कम होता है। कोर्ट को भी इनको जवाब देना पड़ता है कि कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे। तो ये हुआ है, और इतना सब हुआ है। लेकिन आप लोगों को भी और हमारे बाकी लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों का क्लेम नहीं भरा है या जिन लोगों का रिजेक्ट आ गया है, वो सब कोर्ट के जरिए अपना काम करा सकते हैं। एक बात यह है कि याद रखना, बिना कोर्ट के परमिशन के ना आपका रिजेक्ट लेटर का फिर से हो सकता है, ना आपका अकाउंट फ्रीजिंग का डिफ्रीज हो सकता है, और न ही नया क्लेम ले सकते हैं। सारे के क्लेम हो चुके हैं तो नया नहीं ले सकते हैं। कई लोग वहाँ जाते हैं, बोलते हैं हमारा ये ले लो, हमारा वो ले लो। कई बार वो लोग दुखड़ा सुन करके लेटर ले लेते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप कोर्ट के परमिशन या ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे, तब तक आपका क्लेम सबमिट नहीं होगा। और अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो रिकंसिडर का एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट लिख करके आपको दिया है। अगर लिख के नहीं दिया होते तो हो सकता था कि कर सकते, लेकिन चूंकि लिख के दिया है
तो कोर्ट में जाके कोर्ट से बोल के उनको, कोर्ट को भी हमको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। तो कोर्ट का आदेश आता है, उसके ऊपर आपको रिजेक्ट को फिर से रिकन्सिडर होता है और मोस्टली पैसा वापस मिलने का चांस रहता है। लेकिन एक बात है कि जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे, सोचोगे कोई करेगा और मैं बहुत बिजी हूँ, अगर आप बहुत बिजी हो तो बहुत कमा रहे होगे तो पैसा भूल जाओ, बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपको चाहिए 1,00,000-2,00,000 आवे तो अगर 1-2-3 की मशक्क़त में अगर आपको फुर्सत नहीं है तो कहाँ से 1,00,000-2,00,000 रुपये आएगा। तो कोशिश कीजिए जो भी है। और कोर्ट इतना बुरा नहीं होता कि बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सुना है। आप अभी आजकल स्पेशल कोर्ट इसके लिए बना है, वो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ऑर्डर उसका आ जाता है। तो डरिए मत, और हम तो आपको गाइड करते ही रहते हैं। तो बिना डर के अपना हक के लिए लड़िए। नमस्कार।